students, welcome to our channel Zenith Learning Classes. Today in our English class, I am going to explain you all a very new chapter from the book Hornbill, and the chapter is The Laburnum Talk by Ted Hughes. Before we get to the paragraph, let's get familiar with our poet Ted Hughes. Ted Hughes' real name was Edward James. He was born on August 17, 1930 and died October 28, 1998. He was an English poet, translator and children's writer. He was appointed as Poet Laureate in 1984 and held the office until his death. Now, one term as you can encounter is Poet Laureate. What does it mean by? What kind of position is this? So in United Kingdom, the government basically appoint the poets for this position. And what does a poet supposed to do? The poet's supposed to compose poem for state and government events. That is what a poet laureate is supposed to do. In 2008, the Times ranked Hughes fourth on its list of the 50 greatest British writers since 1945. When it comes to understand the poetry of Ted Hughes, you have to know that he is very different from the other poets. Most of the poet talks about nature, but like Wordsworth talks about nature, but most in a beautiful way. Mostly they talk about nature in a beautiful and most enigmatic way. But when it comes to Ted Hughes, he basically talks about the contrast nature of natural world. He talks the both side of natural world. He talks about the wildlife of natural world as well as its beauty, and that's what makes him different from other poets. Some of the major works written down by Ted Hughes are The Iron Man, Wolf Watching, Flowers and Insects, Selected Poems, Motown, Cave Birds. Students, जैसा कि आपने देखा कि टेड ह्यूज के जितने भी वर्क्स हैं उसमें से ज़्यादातर वर्क्स जो हैं वो नेचुरल वर्ल्ड से रिलेटेड हैं, चाहे वो वुल्फ वॉचिंग हो, फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स हो, या फिर केव बर्ड्स हो, या आपका ये जो नेक्स्ट चैप्टर जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो हो. बेसिकली टेड ह्यूज जो थे वो अक्सर नेचुरल वर्ल्ड की बात किया करते थे. उनकी पोएम्स, उनकी कंपोजिशन नेचुरल वर्ल्ड के चारों तरफ ही घूमती थी. वो नेचर को एग्निफाई भी करते थे, उसे ब्यूटिफाई भी करते थे, साथ ही साथ उसके वाइल्ड फीचर्स को भी डिस्कस करते थे. That is the speciality of Ted Hughes. One more thing I want to make you all understand, that when it comes to pronunciate Ted Hughes name, Hughes, we will pronunciate this term Hughes. Don't say Hughes or Hodges, it's Hughes. Okay? Now, without any further ado, let's get back to the chapter by understanding the gist of the poem. Now, what does this poem, the Laburnum Talk talks about? So basically the poem starts with the discussion, with the feature, with the description of our tree, the laburnum. पोएम की शुरुआत होती है एक पेड़ से जिस पेड़ का नाम है लैबर्नम. ये एक पीले पेड़ को आपने देखा होगा, इसमें पीले कलर के फ्लावर्स होते हैं, काफ़ी ऊंचे होते हैं. पोइट लैबर्नम की खूबियाँ बताते हुए पोएम की शुरुआत करता है. One thing is here that this laburnum top has no life. This laburnum tree has no life and has no spark in it. जो laburnum tree है उसके अंदर किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं है. The leaves turned yellow and now the seeds have fallen down. और देख के लग जाता है किसी को भी, ये देख के ही लग रहा है उसकी हालत कि पेड़ में अब बिल्कुल भी किसी भी तरह की एनर्जी नहीं बची है. इस तरह से पोएट जो है पोएम की शुरुआत करते हैं. वन डे द चेंज हैपेंड आफ्टर द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच विद इट्स फैमिली. एक दिन समय बदलता है, सिचुएशन बदलती है, परिस्थितियाँ बदलती हैं जब लैबर्नम ट्री पे गोल्ड फिंच बर्ड अपने फैमिली के साथ सेटल होती है. दिन भर गोल्ड फिंच अपने फैमिली के साथ पूरे पेड़ पे चेयरअप करती रहती है, फिटिंग करती रहती है और साउंड क्रिएट करती रहती है, जिसकी वजह से द ट्री, द लैबर्नम ट्री मेक्स इटसेल्फ अलाइव. इट्स अगेन बिकम लाइफ अलाइव. इट स्टार्ट्स enjoying everything and it doesn't at all look gloomy.
जिस तरह से पहले उसकी लाइफ थी अब एकदम बदल चुकी थी। ही गेट्स द रीज़न टू लिव अगेन, उसे फिर से रीज़न मिल गया था, क्योंकि चिड़िया जो थी, गोल्डफिंच बर्ड जो थी, अपनी फैमिली के साथ हैप्पीनेस लेके आई थी लैबोरनम ट्री के लिए। बट वन डे द बर्ड हैज़ टू गो, और इसीलिए गोल्डफिंच फिर से वो पेड़ छोड़ के चली जाती है, जहाँ से आई थी वापस उसी आसमान में चली जाती है। एंड फिर से लैबोरनम ट्री जैसे पोएम की शुरुआत में था, वंस अगेन इट गेट बैक्स टू इट्स नेचुरल सेल्फ। अगेन इट लॉस्ट इट्स एनर्जी, लॉस्ट इट्स लाइफ, लॉस्ट इट्स हैप्पीनेस आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द बर्ड, एंड दैट्स हाउ द पोएम एंड्स। आई होप सो पोएम का जिस्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं पोएम के सेंट्रल आइडिया की तरफ। पोएम का सेंट्रल आइडिया काफ़ी कुछ पोएम की कहानी कहता है। वी शुड नो दैट थ्रू दिस पोएम वी नीड टू अंडरस्टैंड about the family, about the importance of people. Like nowadays we all are getting nuclear family, हम सब धीरे धीरे एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई भी पूरे परिवार के साथ अब नहीं रहता है। जैसे you talk about your grandfather, grandmother, like your grandparents are not with you, your uncle aunts are not with you, they live somewhere else, you are living with your family, with your parents, and somehow everybody is getting detached from their family, from their roots, and this is what the poem talks about. जो ट्री है उसका भी स्पार्क कहीं खो गया है, और हम सबको जिस तरह से पेड़ को, लैबोरनम ट्री को एक सहारे की, एक सपोर्ट की ज़रूरत थी, somehow we humans need that too. We need the support, we need the cooperation, and that's what the laburnum tree needs. And after the arrival of goldfinch with its family, the laburnum tree gets what he always aspire. जब गोल्डफिंच बर्ड आती है तो उसके बाद ट्री को जो चीज़ हमेशा से चाहिए था वो उसको मिल जाती है, वो खुशियाँ मिल जाती हैं। गोल्डफिंच के सपोर्ट, उसके कंपनी के साथ उसे बहुत अच्छा लगता है, वो काफ़ी इन्जॉय करता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ हियर दैट आप ये भी देखते हो कि फैमिली में हम सबको ज़रूरत पड़ती है। दी अनदर इम्पॉर्टेंट idea discussed in this poem, that everybody has different qualities, different traits, and instead of picking out the drawbacks from them, we should appreciate their abilities, appreciate their beauties, whatever they are possessing. हम सब के अंदर कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ खूबियां हैं। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट दैट खामियां निकालने के बजाय हम खूबियों की बात कर सकते हैं, और यही पोएम में पोइट बताता भी है। गोल्डफिंच बर्ड और लैबोरनम ट्री दोनों ही एक दूसरे के सहारे थे। क्यों? गोल्डफिंच को ट्री मिला एक शेल्टर के रूप में, और गोल्डफिंच ऑफ कोर्स उसे तो शेल्टर मिला, और लैबोरनम ट्री को क्या मिला? गोल्डफिंच के ज़रिए हैप्पीनेस, एनर्जी, सपोर्ट, फैमिली मिला। सो दैट्स व्हाई वी नीड एवरीबडी। इट डजंट मैटर व्हाट दे डू, हाउ दे लुक, व्हाट दे हैव, वी नीड एवरीवन. We need someone in our life, and that is what poet talks in this poem. Another important point is discussed in this poem is that we cannot survive without people. It's impossible. और आप अगर किसी को कुछ देते हो, like the life is based on changes and transformation and exchange. हम सबका जीवन एक्सचेंज में ही बीतता है, यानी लेन देन रहता है। जैसे गोल्डफिंच ने अगर लैबोरनम ट्री को हैप्पीनेस दी, तो लैबोरनम ट्री ने भी गोल्डफिंच को सहारा दिया, शेल्टर दिया, घर दिया, तो उसी तरीके से आप देखते हो ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। हमेशा एक जैसा समय भी नहीं रहता है। जैसे पहले कैसा था लैबोरनम ट्री का लाइफ और गोल्डफिंच के बाद कैसा हो गया। सो व्हाट इज़ दिस? ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, पीपल आर अलाइव। एंड इसी एक्सचेंज और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए लैबोरनम ट्री भी अलाइव था। But after the departure of goldfinch bird, the tree again get back to its usual self. लेकिन गोल्डफिंच के चले जाने के बाद, घोंसला छोड़ देने के बाद, लैबोरनम ट्री फिर से वैसा ही हो जाता है जैसा पहले से था। So that is the important thing the poem discuss here. I hope so आपको central idea समझ में आया होगा. Now let's get back to the chapter with the paragraphs. The Laburnum Top by Ted Hughes. The very first paragraph is, the laburnum top is silent, quite still.
In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. The first paragraph discusses about the feature of laburnum tree. The first paragraph describes about laburnum tree. laburnum tree के बारे में बात करता है कि सबसे ऊंचा हिस्सा जो है laburnum top जो है वो कैसा है? It is silent. It is quite still. It's not moving. मूविंग दैट मीन्स पेड़ तो मूव तो हिलता नहीं है, लेकिन जब आप देखते हैं ना हवा चलती है लाइक समथिंग हैपनिंग, तो पेड़ में वो सरसराहट दिखती है. बट दिस ट्री इज स्टिल, इट्स नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ मूव. सो इसलिए पोइट कह रहा है कि जो लैबरनम ट्री है काफ़ी शांत है, साइलेंट है. इट्स नॉट लाइक साइलेंट वो क्यों है, किसी ने इसे चुप करा है. नो, इट लॉस्ट इट्स एनर्जी. उसका स्पार्क उसने खो दिया है, उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है. In the afternoon yellow September sunlight, the poet tells us the month and the time of this. कह रहे कि दोपहर के समय आफ्टरनून येलो सितंबर के महीने में पूरा का पूरा जो पेड़ था वो येलो लीव से भरा था, सारी पत्तियां सूख गई थी. अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ठीक है, धूप में आप देखते हो पत्तियां कैसे सूख जाती हैं. तो ये सब सिग्निफाई क्या कर रहा है? व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज दैट द लैबरनम ट्री लॉस्ट इट्स विल टू लिव. इट इज़ लाइफलेस नाउ. इट इज़ ग्लूमी. पत्तों का पीला पड़ना, सूख जाना सिग्निफाई करता है कि पेड़ में अब जान नहीं बची है. और यही लैबरनम ट्री के साथ भी है. ऑल इट्स सीड्स फॉलन, इसके जितने भी बीज हैं वो अब झड़ के गिर चुके हैं. ना टिल इसमें जो हार्ड वर्ड्स है वो देख लेते हैं. सबसे पहले जो क्वाइट है, QUITE, मतलब कंप्लीटली, पूरी तरीके से. एंड आई गेस येलोइंग या येलो बोलो, पीलापन जिसको बोलते हैं. आई गेस और कोई फर्स्ट पैराग्राफ में हार्ड वर्ड नहीं है. सो लेट्स गेट बैक टू द सेकेंड पैराग्राफ. टिल द गोल्ड फिंच कम्स. गोल्ड फिंच इज़ अ बर्ड विद अ ट्विचिंग चिरअप. ट्विचिंग मतलब क्या होता है? कसाव, ठीक है, झिड़कना, झटके से आप जग करते हो ना, झटके से किसी चीज़ को हिलाना. दैट इज़ व्हाट हैपन. चिरअप मतलब होता है ट्विटर, यानी कि चिड़िए का चहचहाना. सो व्हाट हैपन? दिस लैबरनम ट्री used to be quiet, silent, but suddenly after the arrival of goldfinch something happened. It brings sensation in the tree. ट्री के अंदर एक सेंसेशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि चिड़िया जो है गोल्डफिंच है वो पेड़ पे बैठने के साथ ही अपना चहचहाना शुरू कर देती है. और पेड़ में एक अचानक से सनसनी दौड़ जाती है, एक झटका लगता है उसको, क्योंकि इतने दिन तक शांत था, अकेला था. अचानक से कोई आता है उसको कंपनी देने के लिए, तो उसके अंदर एक झटका उसे लगता है. अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड. ये जो पेड़ अभी तक शांत था, चुपचाप था, बिना किसी कंपनी के, इट वॉज अलोन. सडनली इट्स स्टार्टल्ड. स्टार्टल मतलब होता है घबरा जाना. सडननेस मतलब अचानक. सो ड्यू टू दिस सडन साउंड, सडन नॉइज, सडन ट्विचिंग, द ट्री, द लैबरनम ट्री स्टार्टल्ड. अचानक से आवाज़ से, अचानक झटके से लैबरनम ट्री जो है थोड़ा घबरा जाता है. ठीक है, पूरे के पूरे पेड़ में सनसनाहट और हड़बड़ाहट महसूस होती है. और जो गोल्डफिंच बर्ड है वो इधर उधर अपना फुदकती रहती है. और ब्रांच के एंड तक वो जो झंझनाहट है गोल्डफिंच के आने के बाद, वो लैबरनम ट्री अपने में महसूस करता है. देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट. नाउ स्लीक मीन्स क्या होता है? काफ़ी सॉफ्टली, बहुत ही फिसलन जिसको बोलते हो, बहुत ही तेज़ी से. यहाँ पे किसे कह रहा है? स्लीक एज अ लिजर्ड. स्लीक एज अ लिजर्ड किसे बुलाया जा रहा है? द गोल्डफिंच बर्ड को बोला जा रहा है, गोल्डफिंच को बोला जा रहा है कि जैसे छिपकली बहुत तेज़ी से नहीं फुदकते हो जाती, बहुत तेज़ी से सरकते हो जाती है, अलर्ट होकर, और बहुत एब्रप्ट, अचानक से. सो गोल्डफिंच भी एक ही डाली पे नहीं है. इट इज़ मूविंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच. ओके, एकदम लिजर्ड की तरह एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे एकदम फुदक रही है. शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स. ओके, वो फिर पेड़ों के पूरे झुरमुट जो था उसमें पहुंचती है और फिर मशीन स्टार्ट्स हो जाती है. मशीन किसको बोल रहा है?
दैट मीन्स यहाँ पर याद रहे स्टूडेंट्स, बेसिकली इट टॉक्स अबाउट सो मैनी थिंग्स। यहाँ पर मशीन जो है स्टार्ट्स करने की बात, यानी कि पेड़ की बात हो रही है। अभी तक ये मशीन जो थी शांत थी, अब अचानक से इसमें एनर्जी आ गई है बिकॉज ऑफ गोल्डफिंच। जहाँ जहाँ गोल्डफिंच जा रही है एनर्जी के साथ, वैसी एनर्जी लैबनम ट्री भी महसूस करता है। ऑफ चिटरिंग एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग। नाउ व्हाट हैपन, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी ट्रेन, बिकॉज ऑफ दिस बर्ड, क्योंकि वो दिन भर चिटर कर रही है, चिरप कर रही है, चहक रही है। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, विंग का फड़फड़ाना। ट्रेमर ऑफ विंग का मतलब होता है पंखों का फड़फड़ाना। ट्रिलिंग मतलब भी होता है नॉइज़। तो अपनी पंखों की फड़फड़ाहट से, आवाज़ से दिन भर पेड़ पे क्या है, खलबली मचा रही है गोल्डफिंच, और ट्री काफ़ी इन्जॉय कर रहा है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। ट्रेम्बल मतलब शेक, हिलना। द ट्री इज़ हैप्पी राइट नाउ एंड थ्रिल्स, रोमांच। द ट्री इज़ हैप्पी बिकॉज नाउ इट हैज़ सम कंपनी and it is enjoying the company of goldfinch. This tree is enjoying the sound of bird. This tree is enjoying the company of this bird, and we can see it with this line when it starts trembling. फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि एकदम स्टिल था, साइलेंट था, बट अब इट इज़ मेकिंग मूव्स, इट इज़ ट्रेम्बलिंग एंड इट इज़ थ्रिल। ये काफ़ी थ्रिल्ड है, काफ़ी ट्रेम्बल कर रहा है, काफ़ी इन्जॉय कर रहा है। इट इज़ द इंजन ऑफ अवर फैमिली। नाउ बेसिकली स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किसे यहाँ पे इंजन बोला जा रहा है। कई बार आप देखोगे दी बेसिकली यू विल फाइंड आउट दैट सम ऑफ देम टॉक्स दैट दिस इंजन इज़ दी ऑफ कोर्स हर फैमिली। दैट मीन्स कभी बोला जाता है कि गोल्डफिंच बर्ड को इंजन बोला जा रहा है, कभी बोला जाता है कि लैबोनम ट्री को बोला जा रहा है, कभी कभी दोनों को बोला जा रहा है। बट समहाउ यहाँ पर दोनों को ही रेफ़र किया जा रहा है। इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ लैबोनम ट्री जो है वो एज एन इंजन की तरह काम कर रहा है उसकी फैमिली के लिए। वो मूव कर रही है, ठीक है, वो एनर्जी दे रही है, और ये ट्री जो है उसको रेसिप्रोकेट कर रहा है। शी स्टोक्स इट्स फुल देन फ्लर्ट आउट टू अ ब्रांच एंड। अब यहाँ पे क्या है, वो बहुत ही तेज़ी से हिट कर रही है, बहुत तेज़ी से इधर से उधर फुदक रही है अपनी फैमिली के साथ। उसके फैमिली भी हैं, और इधर से उधर हर एक ब्रांच पे वो अपना फुदक रही है। शोइंग हर पैरेट फेस आइडेंटिटी मास्क। जो गोल्डफिंच बर्ड होती है उसकी पूरी बॉडी जो होती है, हाफ उसके चेहरे को छोड़ के उसकी पूरी बॉडी जो होती है येलोइश कलर की होती है। अब उसका जो फेस होता है वो ब्राउनिश होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पूरा जो मैंने आपको बताया लैबोनम ट्री जो था उसमें येलो फ्लावर्स होते हैं। आई विल शो यू द पिक्चर, डोंट वरी। तो अब यहाँ पे क्या, उस येलो फ्लावर्स में याद रहे, आप कंफ्यूज अगर हो रहे कि अरे अभी तो सारे येलो ज़मीन पे गिर गए थे, तो वो पत्तियाँ गिरी थी, फ्लावर्स नहीं गिरे थे, ठीक है। सो पूरे के पूरे पेड़ पे जो गोल्डफिंच बर्ड थी वो इधर से उधर भाग रही थी। और क्या था, ये जो ब्रांच थे येलो फ्लावर्स के, लैबोनम ट्री के जो ब्रांच थे, कहीं ना कहीं उसमें गोल्डफिंच जो थी वो छिप जा रही थी, और उसका सिर्फ मास्क की तरह उसका सिर्फ चेहरा दिख रहा था। बैरेट मतलब क्या होता है, धारीदार। उसकी जो चेहरा उसका है धारीदार है, और वही सिर्फ दिख रहा है। बाकी पूरा उसका जो बॉडी है येलो, जो है येलोइश पूरी उसकी बॉडी है, उन येलो फ्लावर्स में ही कहीं छिप जा रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे इस बर्ड ने आइडेंटिटी मास्क पहना हुआ है। देन विद एरी, एरी मीन्स स्ट्रेंज, डेलिकेट मीन्स सॉफ्ट, विसल मतलब सीटी, चिरप मतलब ट्विटर यानी कि बर्ड की चहचहाट, विस्परिंग मतलब बुदबुदाना। देन अचानक से बहुत ही सॉफ्टली बट स्ट्रेंजली सॉफ्टली विद अ विसल टाइप ऑफ चिरप एंड अ विस्परिंग, ठीक, दिस बर्ड मेक्स अ विस्परिंग साउंड। एंड देन व्हाट डज इट डू, व्हाट डज दिस बर्ड डू, अजीब सा लेकिन एक अचानक से, ठीक है, बहुत ही सॉफ्टली गोल्डफिंच बर्ड जो है चहचहाट करती है, बहुत हल्का सा। और फिर क्या करती है, शी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इन्फानाइट। इन्फानाइट किसे कहा जा रहा है, स्काई को। इन्फानाइट विच हैज़ नो एंड, जिसका कोई अंत नहीं है, और यहाँ पे इन्फानाइट मीन्स स्काई। फिर क्या करती है, शी लॉन्चेज अवे। उसके बाद पूरे दिन भर ट्री पे रहने के बाद, enjoy करने के बाद, and had fun, then what happened, this bird takes a flight into the sky, ठीक है, in the sky, towards the sky, sorry। उसके बाद फिर क्या होता है, जो बर्ड है यानी द गोल्डफिंच बर्ड
जस्ट टेक्स इट्स फ्लाइट टूवर्ड्स द स्काई, और उसके बाद वो एक लंबी उड़ान आसमान की तरफ ले लेती है। दैट मीन्स फिर वो लैबनम ट्री को छोड़ के चली जाती है। दैट्स व्हाट इट मीन्स। कुछ समय बिताने के बाद फिर ट्री को छोड़ के गोल्डफिंच चली जाती है। एंड व्हाट हैपन विद द लैबनम ट्री? एंड द लैबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। सबसाइड्स मीन्स क्या होता है? फिनिश। और फिर से द ट्री गेट बैक्स टू इट्स ओल्डर सेल्फ, और फिर से पेड़ जो है अपने पुरानी अवस्था में पहुंच जाता है। वो पेड़ जो एक एज एन इंजन की तरह काम कर रहा था उसकी फैमिली के लिए, जो उसे हर तरह का शेल्टर उसने दिया, और ख़ुद गोल्डफिंच ने जिसे हैप्पीनेस दी, जिसे कंपनी दी, वो बर्ड अब अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ जा चुकी है, और फिर से लैबनम ट्री अकेला हो चुका है। एंड अगेन इट इज़ साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल। सो स्टूडेंट्स, पोएम ख़त्म हो चुकी है। आई होप सो आपको पोएम समझ में आया हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी लाइन और एनी पॉइंट, प्लीज़ you can just do it in the comment section. You can mention that. I will try to give you one by one all the answers. Now, पोएम ख़त्म हो चुकी है, बट अभी हमारा वीडियो ख़त्म नहीं है बिकॉज देर आर मोर टॉपिक्स टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। नाउ, अब हमने अब तक इसमें देखा कि पोएम में एक्सप्लेनेशन हमने देखा। अब आप लैबनम ट्री को देख लो कैसा होता है। दिस इज़ हाउ द लैबनम ट्री लुक्स लाइक। ये आपका लैबनम ट्री है, आपने देखा ज़रूर होगा। ओके, गोल्डफिंच बर्ड कैसी होती है? दिस इज़ हाउ द गोल्डफिंच बर्ड लुक्स लाइक। दीज आर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैंने आपको बताया भी था, और ये सारे वर्ड्स हैं। आप इसको ज़रूर अपने बुक्स में या अपने कॉपी में लिखना चाहिए। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम the boards, or even for your own understanding, not even for your examination, don't just go for the examination, it's for your own understanding. You need to know all these meanings. Okay, so these are the meanings given here. You can check it one by one. Okay, these are the words. If you want me to discuss, I want to discuss one by one. Twitching यानी झटके से खींचना, खिंचाव। चिरप मीन्स होता है ट्विटर यानी चहचहाना। स्टार्टलमेंट का मतलब होता है चौंका देना। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक। चिटरिंग का मतलब होता है चहचहाना। ट्रेमर ऑफ विंग्स मैंने बताया था, पंखों का फड़फड़ाना या पंखों का कंपन। पंख यानी विंग्स। ट्रिलिंग का मतलब थरथराना। ट्रेम्बल का मतलब होता है शेक, थरथराना उसे भी बोलते हैं। थ्रिल का मतलब होता है रोमांच। स्टोक मीन्स उकसाना, स्टिरअप। बैरेड मीन्स होता है धारीदार। एरी मीन्स अजीब। स्लीक, आपने देखा ना, द गोल्डफिंच बर्ड वॉज कंपेयर्ड विद द लिजर्ड। तो जैसे लिजर्ड बहुत स्मूथ होती है, इसकी पूरी बॉडी आप देखते हो बहुत स्मूथली चलती है, गोल्डफिंच को भी उसी से कंपेयर किया गया है। सो स्लीक मीन्स चिकना, स्मूथ। डेलिकेट मीन्स नाजुक। लॉन्च का मतलब शुरुआत करना। इन्फाइनाइट मीन्स यहाँ पे अंतहीन, जिसका कोई अंत ना हो। पोएम में इन्फाइनाइट का मतलब होता है स्काई। सबसाइड्स का मतलब होता है ख़त्म होना। Another important thing which you need to focus here is the symbol. This poem is entirely based on the symbol, students, and you need to know that. Like laburnum tree symbolizes our life. Laburnum tree हमारे जीवन को दर्शाता है। How? जिस तरह से हमारा लाइफ जो है, जिस तरह से हम अपनी लाइफ को देखते हैं, हमारी लाइफ हमें वैसे ही दिखेगी। अगर हमें अपनी लाइफ बहुत ही बोरिंग लगती है तो लाइफ विल बी बोरिंग। ओके, और इफ़ वी if we will wait that कुछ हो then it's not gonna happen anything. We have to make our life meaningful. We have to make something happen in our life. तो जिस तरह का नज़रिया लैबनम ट्री का था, उसी तरह से उसकी लाइफ हो गई थी। तो हमें अपने लाइफ के अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है अपने जीवन को देखते हुए। हाउ वी थिंक दैट्स व्हाट मैटर, एंड व्हाट वी थिंक इज़ व्हाट गोना डिसाइड फॉर द फ्यूचर. This is what happened. So it's really important to change our perspective towards our life and make ourselves happen something in our life. हम खुद से चलो अपने लाइफ में कुछ बदलाव लाते हैं instead of waiting for something to happen. So laburnum tree लाइफ को सिम्बलाइज करता है. गोल्डफिंच बर्ड जो है काफ़ी अहम रोल निभाया उसने पोएम में, क्योंकि इट इज़ द लाइफ लाइन फॉर द फॉर द लैबनम ट्री. गोल्डफिंच बर्ड जो एक लाइफ लाइन की तरह थी लैबनम ट्री के लिए. क्यों? क्योंकि उसने क्या क्या लाया लैबनम ट्री के लाइफ में. चेयर, खुशियाँ, हैप्पीनेस, मोर टू द सिंपल एंड इनएनिमेट सराउंडिंग्स. दैट मीन्स कि हर चीज़ का मिला जुला,
ठीक है, हर एक चीज़ का सिंपल, आसपास सारी चीज़ें नॉर्मल थी, पहले के जैसा ही सब कुछ था। बस गोल्डफिंच के आने से वही सारी चीज़ों एक नई एनर्जी से लेबोरेटरी को भर देता है, वरना आसपास की चीज़ें बदली नहीं थी। सिर्फ एक पर्सन के आने से लेबोरेटरी का जो नज़रिया था लाइफ को लेके वो बिल्कुल बदल गया था। सो इट स्टैंड्स फॉर हैप्पीनेस, स्टैंड फॉर समवन वी सीक इन आवर लाइफ, एंड दैट्स व्हाट द गोल्डफिंच स्टैंड फॉर। Another thing that in first paragraph you see the use of color yellow. येलो किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है? साइलेंस को, डेथ को, इवन ब्यूटी को। पोइट ने यहाँ पे ट्री के कलर को डिस्क्राइब करते हुए बताया है कि किस तरह से जो पेड़ है उसकी पत्तियाँ पीली पड़ चुकी हैं, सूखी हो चुकी हैं, विच सिग्निफाइज द डेथ, ठीक है, लाइफलेस हो चुका है, उसने अपने जीने की हर आस खो दी है लेबोरेटरी ने। पोएम के ज़रिए हम जानते हैं व्हेन द वर्ड यूज हियर येलो। आई होप सो आपको सिंबल समझ में आया हो। लेट्स गेट टू द लिटरेरी एंड पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस चैप्टर। एलिट्रेशन देख लेते हैं, जहाँ पे लेटर्स का रेपिटेशन होता है। आप देख लो, सितंबर का एस, सनलाइट का एस, सडननेस का एस, स्टार्टलमेंट का एस, फिर ट्री ट्रेम्बल का टी, विस्टल और विस्परिंग का डब्ल्यू। ये सारे लेटर्स जो है रिपीट हुए हैं एंड दैट्स वाई एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। सिम्बले हमने कंपेयर, आपको बताया था, कंपेयर हुआ है एज लगा के लिजर्ड के साथ गोल्डफिंच को कंपेयर किया गया था, तो ऑफ कोर्स सिम्बले हो गया। वाई? क्योंकि यहाँ पे एज लगाया गया। अगर एज लगा के हटा दिया जाता और तब भी कंपेयर करते तो वो मेटाफर हो जाता। यहाँ पे मेटाफर देखो किया, द इंजन ऑफ अ फैमिली, हर बेड फेस आइडेंटिटी मास्क। ओके, ये सारे के सारे जो है कंपेरिजन किए गए हैं, ठीक है, कि ऐसे मशीन की तरह है, इंजन की तरह है, उसका धारीदार चेहरे की तरह है, ठीक है, आइडेंटिटी मास्क की तरह है उसका धारीदार चेहरा। ये सब क्या, ये कंपैरिजन किया गया बट विदाउट यूजिंग लाइक और एज, सो दैट्स व्हाई इट इज़ मेटाफर। द लास्ट इज पर्सोनिफिकेशन, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। अब कोई भी इनएनिमेट चीज़ है वो ऑफ कोर्स अगर ह्यूमंस की तरह एक्ट करने लगे तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है, एंड दैट्स वाई ये लाइन जो है वो पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि ट्री कभी कांपता नहीं है, कभी रोमांचित नहीं होता है। बट वी आर सिग्निफाइंग हियर दैट हाउ दिस ट्री बिकेम हैप्पी आफ्टर द अराइवल ऑफ गोल्डफिंच। हम इसके ज़रिए, इस लाइन के ज़रिए बताने की कोशिश करें कि किस तरह से जो पेड़ है, लैबोनम ट्री है, वो खुश हो जाता है गोल्डफिंच के आने के बाद। ओके, now we are at the end of this segment, at the end of this video, so let's quickly discuss the question. The very first question is asking you to describe the tree, how does it look. आपको बिगनिंग में आपने देखा कि पोएम की शुरुआत में कि किस तरह से लेबोरेटरी ट्री दिख रहा था, आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क यू हियर दैट व्हाट हैपन व्हेन गोल्डफिंच अराइव्ड। जब गोल्डफिंच बर्ड पेड़ पे बैठती है, आती है, तो फिर क्या होता है, किस तरह से। तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ डज़ द ट्री रिएक्ट, जब गोल्डफिंच आती तो ट्री कैसे रिएक्ट करता है। एंड देन हाउ डज़ द गोल्डफिंच चेंज द लाइफ ऑफ द लेबोरेटरी ट्री, किस तरह से गोल्डफिंच जो है लेबोरेटरी ट्री की लाइफ को बदल देती है। वाई वॉज द गोल्डफिंच कंपेयर विद द लिजर्ड, गोल्डफिंच को लिजर्ड से क्यों कंपेयर किया गया। वट डज़ द फ्रेज हर बेड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन, इस लाइन का क्या मतलब है। Who was called the engine of the family? Explain the reason behind it. Engine of the family किसे कहा गया है, आपको इसका रीज़न बताना है। What happened at the end of the poem? पोएम के अंत में क्या होता है। So students, that is all. I hope so आपको ये वीडियो पसंद आया हो and you have understood the poem. But if you have any slightest query or any kind of problem you are facing while understanding this chapter, please you can just ask me in the comment section. I will answer your question. If you like this video, please subscribe the channel and please give us a thumbs up. Till then guys, we'll get back to the next chapter. Thank you so much. Bye bye.